کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں دو مسافر ایک ساتھ ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک تھا سکھی، نرم دل، سخی اور ایماندار۔ دوسرا تھا بکیل، کنجوس، خود غرض اور لالچی۔ دونوں نے اللہ کے نام پر ایک نیت کے ساتھ سفر کا آغاز کیا، شاید قسمت بدلنے کا، شاید کچھ سیکھنے کا۔ دھوپ تیز تھی، زمین جل رہی تھی اور ہوا بالکل ساکت۔ سفر کرتے کرتے دونوں ایک سنسان صحرا سے گزرتے ہوئے ایک عظیم شہر کے کنارے جا پہنچے، جہاں ایک گھنا اور پراسرار جنگل شروع ہوتا تھا۔ جنگل کے آغاز پر ایک بہت بڑا درخت تھا، جس کی شاخیں داور تک پھیلی تھیں اور سایہ ٹھنڈا اور سکون بخش تھا۔ سکھی نے مسکرا کر کہا، آؤ دوست، آج کی رات اسی درخت کے نیچے آرام کر لیتے ہیں، صبح انشاءاللہ شہر میں داخل ہوں گے۔ بکیل نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ سکھی نے اپنا کھانا نکالا اور محبت سے کہا، پہلے ہم میرا کھانا کھا لیتے ہیں، رات کو تمہارا کھائیں گے۔ دونوں نے سادگی سے کھانا کھایا، باتیں کیں اور تھوڑی دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے، تب سکھی نے بکیل سے کہا، چلو اب تمہارا کھانا نکالو، بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن بکیل نے دھیرے سے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح کھا لیں گے۔ اصل میں بکیل نے اپنے دل میں سوچا، سفر لمبا ہے، اگر سارا کھانا ابھی ختم کر دیا تو آگے کیا ہوگا؟ چنانچہ اس نے چپکے سے اپنا کھانا نکالا اور اکیلے ہی درخت کے پیچھے بیٹھ کر کھا لیا۔ سکھی کو جب پتا چلا تو وہ دکھی اور ناراض ہو گیا۔ دل میں خیال آیا، ایسے خود غرض شخص کے ساتھ مزید سفر کرنا دانشمندی نہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اللہ کا نام لے کر اندھیرے میں ایک نئی راہ پر چل پڑا۔ چلتے چلتے اسے ایک پرانی ویران چکی دکھائی دی، آٹا پیسنے والی وہ چکی جو اب صرف پرندوں اور ہوا کی صدا کا مسکن تھی۔ سکھی نے چکی کو دیکھا اور کہا، بس آج کی رات یہاں بسر کرتا ہوں، صبح جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ وہ لکڑی کی سیڑھیوں سے چکی کی بالائی منزل پر چڑھ گیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر آنکھیں موند لے۔ لیکن کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نیچے کے دروازے سے ایک عجیب آہٹ سنائی دی، خرر خرر۔ پہلے ایک شیر چکی میں داخل ہوا، پھر اس کے پیچھے ایک چیتا، پھر تیندوا، پھر بھیڑیا، گیدڑ اور آخر میں ایک لومڑی۔ سب درندے آہستہ آہستہ اندر آتے گئے اور چکی کے درمیان دائرے میں بیٹھ گئے۔ سکھی جو بالائی منزل پر تھا، سانس روکے بیٹھا رہا۔ اگر ایک آہٹ بھی ہو جاتی تو جان جا سکتی تھی۔ تب شیر کھڑا ہوا اور بولا، السلام علیکم اے جنگل کے ساتھیوں، آج کی ماہانہ مجلس میں خوش آمدید۔ سب جانور ادب سے بولے، وعلیکم السلام اے جنگل کے بادشاہ۔ شیر نے کہا، آج کی مجلس میں جو خبریں ہیں پیش کی جائیں۔ پہلے چیتا بولا، میرے علاقے میں ایک عجیب چوہا ہے جس کے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ روز صبح ان کو سورج میں رکھتا ہے اور 1 گھنٹے بعد واپس لے جاتا ہے۔ پھر تیندوا بولا، میرے علاقے میں انسانوں کا ایک بادشاہ ہے جس کی بیٹی بیمار ہے، سب طبیب ناکام ہو چکے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو شہزادی کا علاج کرے گا وہ اس کا شوہر بنے گا۔ علاج ایک مخصوص مرغی کے انڈے سے ہوگا جو ایک غریب کسان کے پاس ہے۔ پھر بھیڑیا بولا، میرے علاقے میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، مگر وہ پھل نہیں دیتا کیونکہ اس کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے۔ پھر گیدڑ نے فریاد کی کہ انسانوں نے باڑ لگا دی ہے، خوراک کی قلت ہو گئی ہے اور ننھے گیدڑ بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ سن کر شیر نے سب کی باتیں غور سے سنیں اور کہا، میں ان سب مسائل کو نوٹ کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں تم اپنی ذمہ داریاں اسی طرح نبھاتے رہو گے۔ سکھی اوپر بیٹھا، دم سادھے، ہر ایک بات کان لگا کر سن رہا تھا۔ رات بیت گئی۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، جانور ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ پہلے شیر، پھر چیتا، تیندوا، بھیڑیا، گیدڑ اور آخر میں لومڑی۔
सुखी आहिस्ता से नीचे उतरा। चूंकि अब खाली थी, इसके दिल में कई ख्यालात एक साथ उमड़ आए। चूहे का खजाना, मिर्गी का अंडा, दरख्त के नीचे दफन दौलत। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे यह सब सुनने का मौका मिला। अब वो चल पड़ा इस राह पर जो तकदीर ने इसके लिए लिखी थी। सुखी ने जब जंगली दरिंदों की मजलिस की सारी बातें सुनी तो वो चुपचाप जंगल से निकला और सीधा इस जगह का रुख किया जहां चीते ने चूहे का जिक्र किया था। वो चलता गया यहां तक कि एक नर्म धूप में नहाया हुआ टीला नजर आया। वहीं एक छोटा सा बिल था और वाकई एक चूहा एक एक करके सोने की अशरफियां निकालकर सूरज में रख रहा था। चूहा निहायत तरतीब से अशरफियां रखता, सूरज की रोशनी में उनको गर्म करता और फिर 1 घंटे बाद वापस बल में ले जाता। सुखी हैरत से ये मंजर देखता रहा। फिर दिल में सोचा, अगर मैं इन अशरफियों को हासिल कर लूं तो शहजादी की मदद भी हो जाएगी और मेरा अपना मकसद भी पूरा हो जाएगा। उसने आहिस्ता से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे चूहे की जानिब उछाल दिया। पत्थर चूहे के करीब गिरा और चूहा घबराकर बिल में गायब हो गया। सुखी ने जल्दी से तमाम अशरफियां इकट्ठी की, उन्हें अपने थैले में रखा और फौरन इस गांव की तरफ रवाना हुआ जहां तेंदुए के मुताबिक मखसूस मिर्गी मौजूद थी। कई घंटे पैदल चलने के बाद वो एक छोटे मिट्टी के घरों वाले गांव में दाखिल हुआ। उसने लोगों से पूछा कि वो किसान कहां रहता है जिसके पास एक खास मिर्गी है। एक बूढ़े ने उसे इशारा किया, वो सामने जो टूटा हुआ घर है वहीं रशीद किसान रहता है। सुखी उस कच्चे दरवाजे पर पहुंचा और आहिस्ता से आवाज दी। एक बूढ़ा धूप से झुलसा चेहरा लिए किसान बाहर निकला। सुखी ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपकी मिर्गी खरीदना चाहता हूं। रशीद हैरान हुआ, मिर्गी? ये तो सिर्फ अंडे देती है, कोई खास बात नहीं। सुखी ने थैले से 10 सोने की अशरफियां निकालकर सामने रख दे। रशीद के हाथ कांपने लगे, आंखें फटी की फटी रह गईं। ये इतने दाम सिर्फ एक मिर्गी के? सुखी ने नरमी से कहा, यह तुम्हारे हक का रिस्क है और मेरी जरूरत का जरिया। रशीद ने शुक्रिया अदा किया, सौदा फौरन तय पाया और सुखी ने वो मिर्गी संभाली। वो सीधा एक करीबी दरख्त के नीचे गया और मिर्गी को वहीं कुछ दाने दिए। फिर इंतजार करने लगा कि मिर्गी अंडा दे। दोपहर के बाद मिर्गी ने एक चमकदार अंडा दिया। सुखी ने एहतियात से इसे जेब में रखा और सीधा बादशाह के महल का रुख किया। महल बहुत अजीम था, बुलंद फसीलों, सुनहरे दरवाजों और सफेद संगमरमर के सतूनों से सजा हुआ। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों ने रोक लिया। क्यों आए हो? सुखी ने निहायत एतमाद से कहा, मैं शहजादी का इलाज कर सकता हूं, मुझे बादशाह से मिलना है। ये सुनकर सिपाही चौंके, मगर ऐलान हो चुका था इसलिए सुखी को अंदर ले जाया गया। बादशाह दरबार में बैठा था, आंखों में गम और चेहरे पर फिक्रमंदी। सुखी ने अदब से झुककर सलाम किया और कहा, ए बादशाह वक्त, मैं जानता हूं कि शहजादी बीमार है, अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरे पास इसका इलाज है। बादशाह ने गौर से उसे देखा और कहा, अगर तुम कामयाब रहे तो वो तुम्हारी बीवी बनेगी, मगर अगर नाकाम हुए, धोखा दिया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। सुखी ने कहा, मैं एक शर्त पर इलाज करूंगा, ऐसा कमरा हो जहां मुझे और मरीजा को सिर्फ वही देख सके जो जमीन व आसमान का खालिक है। बादशाह ने इस शर्त को मान लिया। सुखी को 2 मुहाफिजों के साथ महल के एक खामोश महकते कमरे में ले जाया गया। कमरे में शहजादी बिस्तर पर बेहोश लेटी थी, चेहरा जर्द, सांस धीमी और वजूद नहीफ। सुखी ने अंडा निकाला, एक बर्तन में इसका मवाद निकाला, एक साफ कपड़े को इसमें भिगोया और शहजादी के माथे और हाथों पर लगाना शुरू किया। साथ साथ दिल ही दिल में दुआ करता रहा, या अल्लाह, ये सब तेरा करम है।
इस अंडे में शिफा डाल दे। कुछ देर बाद शहजादी के हाथ में जुम्बिश हुई। सुखी की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। उसने दूसरी बार दवा लगाई। शहजादी ने पलकें हिलाई। तीसरी बार दवा लगाने पर शहजादी ने हल्की सी आवाज में कुछ कहा। चौथी बार दुआ लगाते ही शहजादी उठकर बैठ गई और यूं जैसे कभी बीमार ही न थी। मुहाफिज दौड़ते हुए बादशाह के पास गया। बादशाह सलामत, शहजादी ठीक हो गई है, वो चल रही है, बात कर रही है। बादशाह खुशी से दौड़ते हुए कमरे में पहुंचा। बेटी को तंदुरुस्त देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वो सुखी के गिले लगा और फौरन काजी को बुलाया। निकाह हुआ। काजी ने शहजादी को सुखी के निकाह में दिया और यूं एक सादा नेक नियत मुसाफिर बादशाह का दामाद बन गया। फिर महल में जश्न हुआ, खुशियां मनाई गईं, गलियों में रोशनी फैल गई और सारे शहर में चर्चा होने लगा। एक मामूली मुसाफिर ने शहजादी को शिफा दी। शादी के बाद कुछ दिन गुजरे। सुखी अब महल में रहता था, मगर उसकी तबीयत में ना गुरूर था ना दुनिया परस्ती। वो रोज फजर के वक्त उठता, दुआ करता, शहजादी का हाल पूछता और लोगों की खिदमत करता। एक सुबह सुखी ने बादशाह से अर्ज किया, ए बादशाह सलामत, मैं आपको एक और राज बताना चाहता हूं। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो खुद ही अब मेरे खानदान का राजदार हो, कहो। सुखी ने नरमी से कहा, शाही सल्तनत के किनारे एक ऐसा दरख्त है जिसकी शाखें आसमान से बातें करती हैं, मगर वो कभी फल नहीं देता। इसके नीचे एक अजीम खजाना दफन है, ऐसा खजाना जो आपके महल में भी ना समा सके। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम इस जगह तक जा सकते हो? सुखी ने कहा, जी हां, लेकिन मुझे कुछ सिपाही और मजदूर दरकार होंगे। बादशाह ने फौरन सिपा सालार को हुक्म दिया कि वो बेहतरीन सिपाही, मजदूर, बेलचे और ऊंट लेकर सुखी के साथ रवाना हो। कई घंटे के सफर के बाद वो इस दरख्त तक पहुंचे जिसका जिक्र बड़िए ने मजलिस में किया था। दरख्त वाकई अजीब था, इतना बुलंद कि उसकी चोटी बादलों में छपी थी। शाखें गहरे सब्ज रंग की और जमीन के अंदर जुड़े मोटी और सख्त। सुखी ने मजदूरों को हुक्म दिया, यहां से खोदाई शुरू करो, नरमी से गहराई में जाना है। मजदूरों ने दिन रात खुदाई की। कई फुट जमीन खोदने के बाद एक पत्थर का संदूक जाहिर हुआ। सिपाहियों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। संदूक खोला गया। अंदर सोने की ईंटें, हीरे, जवाहरात और नायाब मेहर वाले सके थे। सिपा सालार की आंखें हैरत से फैल गईं और मजदूर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कहते रह गए। सुखी ने कहा, यह खजाना अल्लाह का है, उसका एक हिस्सा मजदूरों का हक है, दूसरा हिस्सा गांव के यतीमों, बेवाओं और हाजतमंदों का है, बाकी हिस्सा बादशाह सलामत को पेश किया जाएगा ताकि सल्तनत के कामों में खर्च हो। इसकी फयाजी और अदल देखकर सब हैरान रह गए। शहर वापस आते ही जश्न मनाया गया। बादशाह ने ऐलान किया कि सुखी को सल्तनत का निगरान बनाया जाता है और जहां भी इंसाफ, नेकी और सखावत दरकार हो वहां वो सुखी की रहनुमाई लेंगे। इधर दूसरी तरफ बकेल का हाल दिगरगुम था। जब इसने सुखी की खुशहाली सुनी तो वो पहले हैरान हुआ, फिर हसद से तड़प उठा। वो मेरा साथी था, वो महल में कैसे पहुंचा? शहजादी कैसे मिली? खजाना कहां से मिला? सुखी से मिलने के बहाने वो महल पहुंचा। सुखी ने पुरानी दोस्ती का लिहाज करते हुए इसे गले लगाया, खाना खिलाया, कपड़े दिए और कहा, बस अल्लाह का करम और दरिंदों की राज भरी रात। उसने सारी कहानी बयान की। जंगल की चुकी, शेर की मजलिस, चूहा, मिर्गी और खजाना। बकेल का दिल हसद से जल उठा। अगर ये सब इसने सुना तो मैं भी सुन सकता हूं। इसी रात वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब वो चुकी के पास पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वो ऊपर चढ़ा और वही मकाम इख्तियार किया जहां सुखी छुपा था।
आधी रात को वही जानवर एक के बाद एक दाखिल हुए, शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया, गीदड़ और लोमड़ी। जब सब जमा हो गए, शेर खड़ा हुआ और बोला, ए जंगल के साथियों, पिछली मजलिस में हमारी बातें किसी ने सुन ली थीं। चूहे की अशरफियां चोरी हो गईं, मिर्गी बीच दी गई, खजाना निकाल लिया गया। जानवरों ने गुस्से से शोर मचाया, हमारी बातें बाहर कैसे गईं? भेड़िया बोला, मुझे यकीन है कोई छपकर हमें सुन रहा है। शेर ने फौरन हुक्म दिया, पूरे तहूना की तलाशी लो। चीता, गीदड़, भेड़िया और बाकी सब जानवर उधर उधर दौड़ने लगे। कुछ ही देर में वो बकेल को छुपे हुए पा लेते हैं। शेर धाड़ा, यही है हमारी मजलिस का चू। जानवरों ने बकेल पर हमला किया। वो बमुश्किल जान बचाकर भागा, मगर बुरी तरह जख्मी हो गया। वो घिसकता हुआ, थका हारा, खून आलूद जिस्म लिए वापस शहर के करीब पहुंचा। चंद दिन बाद जब सुखी शाही गिल्ली में गुजर रहा था तो उसे एक जख्मी, गरीब और शर्मिंदा चेहरा झाड़ियों में पड़ा नजर आया। वो बकेल था। सुखी ने उसे उठाया, महल ले गया, इलाज करवाया और उससे कहा, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया मेरे भाई। इंसान जब अपने दिल में नेकी की नियत कर ले तो अल्लाह रास्ता दिखा देता है। बकेल की आंखों से आंसू बह निकले, मुझे मुआफ कर दो, मैंने सिर्फ लालच की आंख से देखा, दिल की रोशनी से नहीं। सुखी ने मुस्कुरा कर कहा, असल खजाना दिल की नरमी और अल्लाह की रजा है, जो सोना, चांदी और महल से कहीं ज्यादा कीमती होता है। यूं कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। सुखी नेकी, अक्ल, सब्र और इखलास की बदौलत शहजादी खजाना और इज्जत हासिल कर गया और बकेल लालच और खुदगर्जी की सजा पाकर इबरत की मिसाल बन गया।